Hello everyone. Let's start with the next chapter, that is some basic concepts of macroeconomics. First of all, we'll study with the classification of goods. Goods can be broadly classified into two broad categories, that is final goods and intermediate goods, and second one is consumption good or consumer goods and capital goods. First of all, we'll study what are final goods. Final goods, these are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready to use by their final user. Student, what does it mean that they have crossed the boundary line of production? That means these goods are ready to use, and these goods are out of the process of production, and these goods are out of the process of value addition. That means they are ready to use by their final user. For example, a shirt in a retail showroom is all set for its sale to its final user. No value addition is there like stitching, ironing, packing, etc. जो शोरूम में एक शर्ट सेल होने के लिए जाती है, उसमें वो शर्ट की जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है. अब ये जो शर्ट है इट इज़ रेडी टू यूज़ बाय देयर final user. That means it can be a consumer or it can be a producer. Now the cost of this shirt is 1000 rupees. All cost is included in it. Now who are final users? Final users are consumers and producers. फाइनल गुड्स कौन कौन सी रेडी होंगी हमारे पास? फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. Final consumer goods are required for the consumer satisfaction, and final producer goods are purchased by producer as fixed assets in the process of production. For example, if we take the final consumer goods, that is bread and butter, and if we take the example of final producer goods, these are tractor and harvester. The expenditure on final consumer goods by the household are called consumption expenditure, and expenditure on the final producer good by the producer is called investment expenditure. कंज्यूमर गुड तो सिंपल है स्टूडेंट, सभी को समझ आ गया होगा. और जो ये हमारे पास प्रोड्यूसर गुड्स हैं, इनको हमने फाइनल गुड्स क्यों बोला? बिकॉज जब एक फार्मर ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर खरीदता है तो उसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होती है. दे आर fixed assets of the producer, right? So that's why it is called investment expenditure. अगर हम investment expenditure on final goods को लेते हैं तो expenditure on final goods में हम दो चीज़ों को include करेंगे, consumption expenditure and investment expenditure. Now we'll come with the next point, that is what are intermediate goods. अब intermediate goods कौन से होते हैं? Intermediate goods that means जो final goods रेडी होने से पहले जो भी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, जो भी स्टेप्स के थ्रू एक प्रोडक्ट पास ऑन होता है, वो सारे प्रोसेस में जो भी गुड्स रेडी होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स. अब यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक शर्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले कॉटन से थ्रेड में कन्वर्ट करना पड़ा, थ्रेड से फिर क्लोथ से फिर इसका फर्दर प्रोसेस चेंज हुआ स्टिचिंग, आर्निंग एंड पैकिंग में. अब ये जो शर्ट है ये फाइनल गुड है, और जो भी ये प्रोसेस पीछे चला है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट ऑल द गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. नाउ intermediate goods are those goods which have yet not crossed the boundary line of production. Value is still to be added in these goods. That means जो कॉटन से थ्रेड कन्वर्ट हुआ, हम थ्रेड को तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसको अभी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस की ज़रूरत होती है. विच आर येट नॉट रेडी टू यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र. जिनमें ये 3 फीचर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स. और अगर हम अदर वर्ड्स की बात करते हैं, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं. In the other words, these are those goods which are purchased by one firm or the other firm.
जैसे हमने कि ये एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर कि शर्ट मान लीजिए रेडी होगी, या शर्ट रेडी होके कहाँ पर जाएगी, होलसेलर के पास जाएगी, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाएगी। सपोज रिटेलर हम ए फर्म ले रहे हैं, अब ये ए फर्म हो सकता है इसलिए परचेज कर रहा हो क्योंकि इसको सेकंड फर्म को सेल करना है, तो ये एक फर्म से दूसरी फर्म में भी जब जाएगा स्टिल इट इज़ नॉट रेडी टू यूज़ बाय द फाइनल यूज़र, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। हम इसको तब तक इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे जब तक ये फाइनल यूज़र के पास ना चली जाए विच इज़ रेडी टू यूज़, राइट। तो इसी तरह से हमारे पास ये प्रोसेस चलता है दैट विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अदर फर्म। किस लिए यूज़ हो सकता है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो सकता है कि कॉटन से थ्रेड में कन्वर्ट हो रहा है, थ्रेड से फिर क्लोथ में कन्वर्ट हो रहा है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है एज गुड्स फॉर रीसेल, जैसे कि फर्म ए से फर्म बी की तरफ गया था। नाउ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स ultimately becomes a part of फाइनल गुड्स। ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, जो भी कॉटन की कॉस्ट आएगी, जो भी थ्रेड की कॉस्ट आएगी, जो भी क्लोथ की कॉस्ट आएगी, आयरनिंग, पैकिंग, स्टिचिंग, इन सब की कॉस्ट जो है वो फाइनल गुड्स, जो शर्ट हमारी 1000 रुपीज़ की रेडी हुई है वो 1000 रुपीज़ में सारी की सारी इंटरमीडिएट कॉस्ट इंक्लूड होगी, राइट। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कारपेंटर ने वुड खरीदी 10,000 रुपीज़ में और कारपेंटर ने इसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया और वो फर्नीचर कितने का रेडी हुआ, 20,000 रुपीज़ का, राइट। तो ये 20,000 रुपीज़ में सारी की सारी पिछली वाली कॉस्ट इंक्लूड होगी, राइट। तो नेशनल इनकम जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी कि हमने 20,000 भी प्लस कर दिया और 10,000 भी हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है, राइट। तो एक्सपेंडिचर जो भी इंटरमीडिएट कॉस्ट के ऊपर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलेंगे या फिर हम उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट बोल देते हैं, राइट। अब जो हमने ये पीछे एग्जाम्पल लिया था ये कारपेंटर वाला, जो 20,000 इसका आउटपुट रेडी हुआ और पीछे जो इंटरमीडिएट कॉस्ट इंक्लूड हुई इसकी 10,000 रुपीज़ में, तो कारपेंटर ने वैल्यू एडिशन कितना किया, उसने वैल्यू एडिशन किया 10,000 रुपीज़ का। यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल आ रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये 10,000 हमारे पास क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हमारा कंप्लीट हो गया फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का। अब ये सेकंड हमारा एक फर्स्ट फीचर आता है इसके बाद, द सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड। सेम गुड को हम फाइनल गुड भी बोल सकते हैं और इंटरमीडिएट गुड भी बोल सकते हैं, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका फाइनल यूज़र कौन है। फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं शुगर। अगर हम शुगर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक बिस्किट बेकरी वाला है वो शुगर को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड। अगर कोई हाउस होल्ड डायरेक्टली उसका कंजप्शन कर रहा है फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, तब हम उसे क्या कहेंगे, फाइनल गुड बोल देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं पेपर का। पेपर जो हम ये सिंपल ये पेपर यूज़ कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ परचेज्ड बाय द स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट परचेज कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड अ फाइनल गुड। अगर कोई पब्लिशर इसको यूज़ कर रहा है फॉर मेकिंग बुक्स देन इट विल बी कॉल्ड एन इंटरमीडिएट गुड, राइट। नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है, व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ दैट गुड। वाइल क्लासिफाइंग गुड्स एज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड, व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ दैट गुड, कि एंड यूज उसका क्या हो रहा है। इफ इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज रॉ मटेरियल इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड, जैसे हमने पीछे बात की। एंड इफ इट इज परचेज्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर द रीसेल, दैट मीन्स जो हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था फर्म ए से फर्म बी में जा रहा है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड। इफ इट इज यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि फार्मर ने ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर वगैरह खरीदा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर, राइट। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं मिल्क। मिल्क इज टेकन एज फाइनल और इंटरमीडिएट गुड, इट डिपेंड अपॉन द एंड यूज़र। वही सेम एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। अगर एक डेयरी फार्मर मिल्क को परचेज कर रहा है लेकिन कुछ पार्ट उसको
उसके कुछ पार्ट को हम बोल सकते हैं कि फाइनल गुड है और कुछ पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड है। अगर तो वो डेयरी फार्मर हाउस होल्ड को डायरेक्ट सेल कर रहा है तो वो हाउस होल्ड जो मिल्क परचेज कर रहे हैं दैट मिल्क पार्ट विल बी कॉल्ड फाइनल गुड। और अगर जो डेयरी फार्मर है वो उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, बटर बना रहा है, स्वीट्स बना रहा है, देन दैट पार्ट ऑफ मिल्क इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड, राइट। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो हमने पीछे ये सारे पार्ट्स को डिस्कस किया है ये सारा हमारे पास वही हो जाएगा। दैट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटसाइड द प्रोडक्शन। दीज गुड्स may be used as raw material. Final goods are not used as raw material. It can be resold, it can't be resold. Value is still to be added, value is not to be added. This intermediate cost is called intermediate consumption or intermediate cost, and this final goods will be treated as final expenditure. जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंटरमीडिएट की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते हैं और फाइनल गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।